this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and we are discussing chapter number 3 of our book, which is titled as The Little Girl, written by Catherine Mansfield. अब ये particular chapter में हम already part 1 of the story discuss कर चुके हैं in the previous video, in which we have covered the story, that is जो little girl यहाँ पे नाम दिया गया है, that is Kezia, the main character of the story, और वो जो है अपने पापा को पसंद नहीं करती, she is afraid of her father because उनके फादर जो हैं थोड़े डिसिप्लिन्ड हैं, स्ट्रिक्ट हैं और उनसे गुस्से में बात करते हैं. दैट इज व्हाई शी इज अफ्रेड ऑफ हर फादर एंड शी डज नॉट लाइक हिम. And also what happens in the story later, like what are the situations that we have already seen, but now we have to continue the story from this point of time, that is कि अब जो है कीजिया जो है one day she is suffering from cold and she is there at home. तो उनकी grandmother जो है वो उनको advice देती है कि why don't you make a gift for your father's birthday which is coming next week. और उसके लिए वो उनको एक येलो सिल्क का क्लोथ देती हैं और जिससे वो उनको एक आइडिया देती हैं कि एक पिन कुशन बनाओ अपने फादर के लिए, ही वुड लाइक इट. नाउ लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस लेटर इन द स्टोरी. इज कीजिया एबल टू मेक अ गिफ्ट? Will her father like this gift, or something else will happen that we are not expecting? Clear? All right, let's read the later part of the story, which says, laboriously with a double cotton the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with, that was the question. अब वो गिफ्ट बना रही है ना अपने फादर के लिए, तो लेबोरियसली यानी विद अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, एफर्ट्स डाल के वो जो है एक कुशन बनाने की कोशिश करती है अपने फादर के लिए. तो शी इज़ लाइक विद अ डबल कॉटन, मतलब कि जब हम सुई और धागा लेते हैं, नीडल और थ्रेड लेते हैं, तो सॉर्ट ऑफ हम उसको डबल करते हैं ना, उसे कहते हैं कॉटन थ्रेड की बात हो रही है यहाँ पर, दैट इज डबल कॉटन. तो वो एक थ्रेड लेती हैं एंड शी with lot of efforts tries to sew 3 sides of this cushion. 3 साइड से वो उसको सिलने की कोशिश करती हैं. But what to fill it with, that was the question. But उस क्वेश्चन को किस चीज से फिल करना है, उसमें क्या डालें, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था इनके लिए कि what should be filled in this cushion so that वो ये गिफ्ट जो है बना पाए. Clear? All right. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. तो उनकी जो grandmother हैं वो garden में maybe walk कर रही होंगी. She was out in the garden. तो she did not know कि उनको क्या fill करना है, because cushion में obviously cloth तो होता ही है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ fill करके ताकि वो थोड़ा soft हो और फिर उसको sew करेंगे finally एक end से. तो वो जो है क्या करती है, उनको पता है कि उनकी grandmother जो है वो बाहर garden में है and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. तो क्या करती कीजिया, वो अपने मम्मा के रूम में चली जाती है, वेंट इनटू बाय चांस, यानी शी वाज लाइक वॉकिंग कि मैं क्या करूँ फिलिंग के बारे में, व्हाट शुड आई फिल इन दिस क्वेश्चन. सो शी जस्ट सीज हर मदर्स रूम और वो वहाँ उसमें एंटर हो जाती हैं. Just to look for scraps. Scraps means small pieces of cloth or paper that are not needed. यानी कि कुछ unusual, useless चीजें हों जो कि scrap हो, bits and pieces हो, clothes के हों या फिर papers के हों, ताकि वो उसको fill कर पाएं उस cushion के अंदर. So she was looking for those fillings. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. What happened? Bed table पे, bed की साइड में जो टेबल होता है वहाँ पे कीजिया को क्या दिखता है? A great many sheets of fine papers, यानी कि पेपर्स की शीट्स दिखती हैं उनको कि बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं बेड टेबल पे. Gathered them up, उन सबको उन्होंने उठा लिया कीजिया ने. Tore them into tiny pieces, और उसको टीयर कर दिया, फाड़ दिया कुछ पीसेस में. And stuffed her case, यानी कि वो जो कुशन बना रही थी उसमें वो सारे पेपर्स जो पीसेस थे वो उन्होंने उसमें फिल कर दिए. Then sewed up the 4th side. 3 साइड से उन्होंने सिलाई कर दी थी उस कुशन की, फिर 4th साइड से भी उन्होंने सिलाई कर दी और उसमें ये फिलिंग्स डाल दी. क्लियर? तो उनको क्या मिले? कुछ पेपर्स मिले जो कि फाइन पेपर्स थे, उनको फाड़ कर उसने उसमें फिलिंग डाल दी. एंड नाउ शी हैज अ गिफ्ट रेडी टू गिव टू हर फादर. क्लियर? ऑल राइट. That night there was a hue and cry in the house. But उस दिन क्या होता है, उस रात को there is hue and cry in the house. That means there is angry protest. बहुत ज़्यादा गुस्से में है घर वाले उस दिन. ऐसा क्या होता है? Let's read it. Father's great speech for the port authority had been lost because जो कीजिया के फादर हैं उनका कुछ ऑफिशियल कुछ चीज़ें थी, यानी कि उनके पास एक स्पीच थी ऑफ पोर्ट अथॉरिटी, वो स्पीच के पेपर्स जो हैं वो नहीं मिल रहे थे किसको? कीजिया के फादर को. एंड बिकॉज दोज पेपर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, सो ही वॉज वेरी एंग्री. Rooms were searched, servants questioned,
फाइनली मदर केम इनटू कीजियाज रूम। तो उन्होंने सारे रूम सर्च कर लिए, कहीं पे कुछ भी नहीं मिला उनको, वो पेपर्स ही नहीं मिल रहे थे। जितने भी सर्वेंट्स थे, जो भी उनके यहाँ पर हेल्पर्स हैं, उनसे पूछा, नोबडी न्यू अबाउट दोज पेपर्स। देन फाइनली व्हाट हैपेंड, मदर ऑफ कीजिया जो है वो कहाँ एंटर करती है, कीजिया के रूम में। कीजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो वो क्वेश्चन करती हैं, आई थिंक कि तुमने कुछ पेपर्स नहीं देखे होंगे जो कि हमारे रूम के टेबल पे पड़े थे। यानी कि वही पेपर्स थे जो कीजिया ने फिलिंग के उस पे यूज कर लिए हैं। दोज पेपर्स वर स्पीच ऑफ पोर्ट अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स फॉर हर फादर। Oh yes, she said, I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. तो उनकी जो बेटी है कीजिया, वो क्या बोलती हैं, yes, मैंने देखे थे वो पेपर्स और मैंने अपने सरप्राइज के लिए उन पेजेस को फाड़कर उसके जो पीसेस हैं उसको फिलिंग की तरह यूज कर लिया है। What? Screamed mother. Now this was something very shocking for Kizia's mother because those papers were important, right? There was a speech written in those papers. So when she got to know, when she became aware of the fact that Kizia is the one who tore the pages or tore the pages into pieces just to fill in the surprise, so that was something very shocking for Kizia's mother, and that's why she screamed. वो इसीलिए चिल्लाती हैं। Come straight down to the dining room this instant. और वो गुस्से से बोलती हैं that just directly, अभी के अभी, इसी instant, immediately just come to the dining room, और वहां पर वो उनको बुलाती हैं। Let's see what happens next. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. And she was just called or dragged, यानी उसको खींच के लाया जाता है किसको, कीजिया को। It happens ना, जब बच्चे सुनते नहीं है, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, when they do not listen to their parents, what their parents do is वो खींच के लेकर आते हैं, they just give 2 to 3, right? तो ये चीज़ जो है यहाँ पर क्या होती है, कीजिया because maybe she was afraid or something, उसको ड्रैग करके यानी खींच के लेके आती है उनकी मम्मा to the dining area। और वहाँ पर जो कीजिया के फादर हैं, he was moving टू एंड फ्रो क्यों मूव करता है, कोई जब नर्वस होता है, जब सोच रहा होता है या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जब हम वॉक करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हम वॉक करने लगते हैं, दैट इज समथिंग जो कीजिया के फादर कर रहे हैं एट प्रेजेंट। उनके हैंड्स जो हैं वो पीछे बंधे हुए हैं एंड ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो। Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? तो यहाँ पर वो जो है बहुत ऐसे बोलते हैं well, क्या पता चला पेपर्स मिले या नहीं। तो उनकी जो वाइफ है वो उनको एक्सप्लेन करती है that Kezia was the one who took those papers, torn it into pages and she used those to as a filling or something। तो वो एक्सप्लेन करती है अपने हस्बैंड को। Now he stopped and stared at the child and he is like, वो घूर के देखते हैं कीजिया को और उससे पूछते हैं did you do that? Were you the one who did that? No, 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 she whispered। तो कीजिया जो है वो धीरे से बोलती हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं किया। तो she whispered, यानी हमारी आवाज़ नहीं निकलती ना, पेरेंट्स गुस्से में होते हैं तो we are like, हम बहुत धीरे से बोलते हैं no। तो same way she also said in a stammering way, no, no, that is I have not done anything। Now let's see what happens। Mother go up to her room and fetch down the damn thing। See that the child's put to bed this instant। Now as कीजिया के फादर को पता चलता है कि दैट क्वेश्चन इज समथिंग जिसमें उनके पेपर्स जो हैं वो फिल किए गए हैं, तो वो बोलते हैं अपनी वाइफ से कि मदर गो अप टू हर रूम, यानी कीजिया के रूम तक जाओ, एंड फेच डाउन दैट डैम थिंग। डैम थिंग मीन्स यूज टू एक्सप्रेस एंगर एट समथिंग एंड दैट समथिंग इज दैट क्वेश्चन। जस्ट गो एंड ब्रिंग दैट थिंग, दैट इज द क्वेश्चन जिसमें उन्होंने वो पीसेस डाल दिए हैं। See that the child's put to bed this instant। and then वो अपनी वाइफ को ये ऑर्डर देते हैं कि मेक श्योर कि ये जो कीजिया है उसको अभी के अभी तुम सुला दो। शी शुड बी पुट टू बेड दिस इंस्टेंट इटसेल्फ, यानी इमीडिएटली। क्लियर? तो ही इज वेरी एंग्री। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor। Now because Kezia is very sad, बहुत डर गई हैं वो, एक तो उनको चिल्लाया गया है, ऊपर से वो इतनी खुश थी, she made a gift for her father, but everything just turned to some other level, बहुत ही opposite हो गया, and that was उनको डांट पड़ गई। तो she was crying too much, she was crying too much to explain that this was something I did for you father। she wanted to explain it, so she was crying a lot and she lay in the shadowed room। एक रूम में sort of सारी लाइट्स बंद हो और रूम थोड़ा खुला हो, तो ऐसे नहीं एक रोशनी आती है और एक तरीके से परछाई बनती है, शैडो बनती है, उसकी बात हो रही। So she was there in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। it means sad atmosphere in the room, यानी कि इस तरीके से माहौल हो रहा था, environment हो रहा था रूम का, जैसे कि there is something upsetting, there is something sad about the situation, because obviously यहाँ पर खुश तो होंगी नहीं कीजिया, she was scolded by her father।
देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स, और फिर क्या होता है, एकदम से उनके फादर एंटर करते हैं कीजिया के रूम में, और उनके हाथ में क्या है, एक रूलर है, यानी कि एक स्केल है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, और वो बोलते हैं कि जो तुमने गलती की है, दैट इज यू हैव टोर्न आउट द पीसेस, टोर्न द पेपर, जिस पे स्पीच लिखी हुई थी, सो फॉर दिस मिसचीफ आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुमको मारूंगा। तो ऑब्वियसली वो पहले से ही डरी हुई है, नाउ शी विल बी मोर अफ्रेड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। Oh no no, she screamed, hiding under the bed clothes. Obviously she was so afraid कि वो एकदम से बोलती कि नहीं 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 मुझे मारो मत, एंड वो बेड क्लोथ्स यानी बेड शीट को लेकर अपने को छुपाने की कोशिश करती हैं। सो शी वॉज वेरी अफ्रेड कि उनके पापा बोलते हैं दैट आई एम गोइंग टू बीट यू विद दिस रूलर, एंड शी सेज दैट नो नो नो, एंड शी हाइड्स हर सेल्फ इन द बेड क्लोथ्स। दैट मीन्स द शीट्स, द टॉप शीट्स दैट यू कवर योर सेल्फ वेन यू आर स्लीपिंग, यानी बेड शीट, चादर की बात हो रही है। He pulled them aside. What did कीजिया father do? उन्होंने वो चादर लिया and he pulled them aside, उसको एक साइड में कर दिया। Sit up, he ordered, and hold out your hands. और बोला बैठ जाओ एकदम से और अपने हाथ जो है वो बाहर निकालो, क्योंकि वो उनको मारने वाले। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तो उनके फादर का ये मानना था कि it is required right now कि मैं कीजिया को मारूं, because कीजिया को अभी ही ये चीज सिखानी पड़ेगी कि कभी भी वो चीज को हाथ मत लगाओ which does not belong to you, जो तुम्हारी नहीं है। So he wanted to teach कीजिया a life lesson, and for that he chose a wrong path obviously, which is he chose to beat कीजिया. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. But she was trying to explain to her father कि भाई ये तो मैं आपके बर्थडे के लिए गिफ्ट बना रही थी, although गलती हुई है, but she was not knowing it, she did not do it intentionally, तो she was not wrong at her part. Also कीजिए कि पापा का गुस्सा जायज है, because those papers might be very important for him, but beating the child was something wrong he did. तो वो जो है explain कर ही रही थी कि but it was for your birthday, तो इस तरीके से डर के मारे वो बोल ही रही थी, but उनके फादर ने क्या किया, रूलर लिया और उनके हाथ पर मारा। क्लियर? ऑल राइट। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. बहुत घंटों बाद जब उनकी ग्रैंड मदर जो है, उनकी दादी जो है, वो क्या करती हैं, ऑब्वियसली जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दे ऑलवेज शार लव राइट, तो वो भी क्या करती हैं, कीजिया को अपनी शॉल में रैप कर लेती हैं, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर क्या होती है, जिस चेयर को हम बैठते तो वो हिलती है ना आगे पीछे, दैट इज व्हाट इज रॉकिंग चेयर। तो वो उस पर उसको बिठाती हैं। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, एंड ऑब्वियसली जब बच्चे को बहुत बुरा लगता है, वो सैड होता है, तो वो गले लगा लेते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या मदर को या फादर को। तो शी ऑल्सो क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, यानी कि टू हर ग्रैंड मदर्स body to attach yourself to something. What did God make fathers for? She sobbed. और वो रोते रोते अपनी ग्रैंडमदर से पूछती हैं कि भगवान ने फादर्स को बनाया ही क्यों, पापा होते ही क्यों हैं। अब ये जो रिएक्शन है हमें अभी गलत लिखता है, बट कीजिया की अगर हम जगह पे जाएं, कीजिया was so sad with this thing कि she was trying to make a gift for her father. It was something which was done very with a very good intention, but वो चीज़ जो है उसके लिए उनके फादर उनको चिल्लाते हैं। तो कीजिया को पेपर्स की इंपॉर्टेंस नहीं पता राइट, बट उनके फादर उनको जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, चिल्लाते हैं, दैट इज समथिंग जो कीजिया के लिए बहुत ज्यादा अपसेट करने वाली चीज होती है। तो शी इज लाइक व्हाई गॉड हैज मेड फादर्स। Here's a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. और उनकी दादी जो है वो उनको बहुत ब्यूटीफुली समझाती है कि ये एक क्लीन हैंकी है, हैंकरचिफ है, रुमाल है, टेक दिस, ब्लो योर नोज, क्योंकि वो रो रही है ना, तो बच्चों का सॉर्ट ऑफ तब ब्लो योर नोज इज समथिंग जो हम करते हैं व्हेन वी क्राई। तो शी इज क्राइंग सो मच कि उनकी ग्रैंड मदर बोलती है ब्लो योर नोज इन दिस क्लीन हैंकी एंड गो टू स्लीप, जाके सो जाओ, कल सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी, टुमारो विल बी अ न्यू डे एंड यू विल फॉरगेट एवरीथिंग व्हाट एवर हैपेंड राइट नाउ। क्लियर? ऑल राइट। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. तो वो यही चीज़ समझाती है कि मैं तो भैया अपने पापा को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, that this was something which I did for you. But वो सुनने के लिए उसके पापा जो है वो तैयार ही नहीं थे, and she was like, father was too upset to listen tonight, like he was super sad that he was not even listening, that whatever I did was for himself. Clear? For him. Sorry. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, बट ये चीज़ वो कभी नहीं भूली, जो ये उनकी ग्रैंड मदर बोलती है ना कि तुम कल भूल जाओगे ये सब चीज़ें, बट वो नहीं भूली। एंड दिस इज द थिंग और दिस इज द रीज़न जिसकी वजह से ये कहा जाता है दैट बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो इस चीज़ का कितना गहरा असर हो मेंटली उस
बच्चे पे, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चे जो हैं उनको थोड़ा पता है क्या सही है क्या गलत है, दे वुड टेक इट एज यू गिव इट, लाइक इफ यू बीट देम इट वुड बी समथिंग जो कि रॉन्ग होगा और उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी कि वाई डिड दिस पर्सन डू दिस थिंग फॉर मी। तो यहाँ पर उनके पापा ने जिस तरीके से उनको मारा स्केल से, दैट वॉज समथिंग विच हैड अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन कीजिया। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. And this is something जो कि impact पड़ा कि जब भी वो अपने पापा को अब next time देखती थी, वो automatically अपने हाथ पीछे कर लेती थी। उसको लगता था कि my father can beat me any time. तो this was something जो कि उनके दिमाग पे impact पड़ गया था। कीजिया was like if I'll see my father, he can beat me any time. तो इसीलिए वो अपने हाथ जो है हमेशा पीछे रख लेती थी जब भी वो अपने फादर को देखती थी। And a red color flew into her cheeks like because वो sad हो जाती थी और डर जाती थी, उस वजह से उसके पूरे जो गाल हैं जो लाल हो जाते थे, cheeks would turn red, not because of happiness, it was because of that fear she would see or she would feel whenever she would notice her father. Clear? All right. The McDonald's lived next door. They had 5 children. Now we'll talk about the neighbors of Kezia. और neighbors कौन है कीजिया के? बहुत ही beautiful सा नाम है, that is McDonald's. तो वो जो है उनके neighbors के बारे में यहाँ पे बात कर रही हैं कि उनके जो neighbors हैं जिनका नाम है McDonald's, वो सिर्फ next door ही रहते थे, यानी कि साइड वाले घर में ही रहते थे. They had 5 children और उनके 5 बच्चे थे. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing टैग इन द इवनिंग. तो वो जो है बिल्कुल एक गैप होता है फेंस में, यानी कि जब हमारे यहाँ पे बाउंड्री होती है वहां से हम देख रहे हैं सॉर्ट ऑफ. तो वो देखती हैं कि ये जो पर्सन है वो अपने बाकी के जो 5 बच्चे हैं उनके साथ क्या खेल रहे हैं? टैग खेल रहे हैं. व्हाट इज टैग? अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अदर. एक दूसरे को पकड़ते हैं ना, तो हम बोलते हैं पकड़म पकड़ाई, दैट इज व्हाट इज टैग इज. तो यहाँ पे वो देखती हैं कि मैकडोनल्ड्स जो फैमिली है उनके फादर और जो उनके 5 बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ क्या खेल रहे हैं? टैग खेल रहे हैं. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran around and round the flower beds, shaking with laughter. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि उनका एक बेबी जो है माओ जिसका नाम है वो उनके शोल्डर पे बैठा है, 2 गर्ल्स जो है वो उनके पॉकेट्स को पकड़ के बैठी हैं और यहाँ पे बाकी के 2 बच्चे खड़े हैं और वो लोग यू नो राउंड एंड राउंड गोल गोल घूम रहे हैं ताकि वो एक दूसरे को कैच कर पाए. एंड दिस इज समथिंग विच इज शेकिंग विद लाफ्टर, यानी कि सब बढ़िया खुश हैं सारे पांचों के पांचों बच्चों और जो उनके पापा हैं, एवरीबडी इज लाफिंग एंड प्लेइंग वेरी नाइसली. क्लियर? सो दिस इज समथिंग जो वो नोटिस कर रही है. कौन? कीजिया. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. तो एक दिन वो क्या नोटिस करती हैं कि उनके जो बच्चे थे उसमें से एक जो बेटा है उसने हूज. अब हूज क्या होता है? सॉर्ट ऑफ ऐसा होता है जिसमें पाइप होते हैं और आप पाइप से फिर पानी निकलता है, इसको कहते हैं हूज. तो वो हूज जो है वो उन्होंने मतलब जो पाइप है पानी का वो अपने पापा की तरफ कर दिया था. एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. बट वो जो है हमेशा हंसते हुए ही उनको कैच करने की कोशिश कर रहे थे. ही वॉज नॉट लाइक ये क्या कर रहे हो. कीजिया वॉज लाइक अगर मैं ये अपने पापा के साथ करूंगी तो मुझे तो डांट पड़ जाएगी. Then it was she decided there were different sorts of fathers. और तभी उसको यूं लगता है कि यार ऐसा नहीं है कि fathers जो टर्म है या सारे पापा जो हैं वो खराब होते हैं. It's just that different टाइप के fathers होते हैं. Like मैकडोनल्ड्स की फैमिली जब वो देखती हैं तो उनके फादर जो हैं he is someone जैसे चीज कीजिया को चाहिए, बट कीजिया के फादर जो हैं वो वैसे नहीं हैं. तो उनको लगता है कि सब फादर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. एक दिन क्या होता है कि उनकी जो मम्मा है कीजिया की, she became ill, वो बीमार हो गई और उनको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया. और उनकी मदर के साथ उनकी ग्रैंड मदर जो है यानी जो दादी है कीजिया की, she also went with her daughter-in-law. Clear? The little girl was left alone in the house with Alice the cook. Now we know ना there are servants in their house, जिससे वो पूछते भी about the speech. तो यहाँ पर कीजिया was left alone in the house with Alice. Alice कौन है? वो इनकी कुक है जो इनके लिए खाना बनाती है. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. But दिन के टाइम पे it was okay with कीजिया कि Alice थी ध्यान रखने के लिए, she was okay with it. But जैसे ही रात का टाइम आया, night time came and she was put to bed, that was something जब you know कीजिया को डर लगने लगता है and it was not something normal or you know as it was during daytime, क्योंकि night time पे she grew suddenly afraid, वो एकदम से डर गई. What was the reason? Let's read about it. What I'll do if I have a nightmare. तो वो एकदम से क्वेश्चन करती है एलिस से कि मैं क्या करूंगी अगर मुझे एक नाइटमेयर यानी बुरा सपना है. जब हमें बुरा सपना आता है उसे हम कहते हैं नाइटमेयर. She asked, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed.
आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। जो वो एलिस को समझाती हैं कि आई ऑफन गेट नाइटमेयर्स, मुझे जो है बुरे सपने, अ बैड ड्रीम उसे कहते हो नाइटमेयर, तो मुझे अक्सर जो है बैड ड्रीम्स आते हैं, आई ऑफन सी नाइटमेयर्स। और उसकी वजह से क्या होता है, ग्रैनी जो है फिर वो मुझे अपने बेड पे यानी कि अपने रूम पे अपने बेड पे सुलाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क बिकॉज आई कांट स्टे अलोन इन द डार्क, मुझे अंधेरे में डर लगता है। इट इज ऑल इट ऑल गेट्स विस्परी, सॉर्ट ऑफ ऐसा लगता है कीजिया को कि बहुत छोटी छोटी आवाजें आ रही हैं। शी फील्स वेरी अफ्रेड टू स्टे अलोन इन डार्क। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. तो वो जो एलिस है वो अपने सॉक्स को पुल करते हुए क्या बोलती हैं कि डोंट वरी, ज़्यादा सोचो मत और सो जाओ। और वो जो है फिर बोलती है कि बट चिल्लाना मत, स्क्रीम मत करना, जिससे तुम्हारे जो पुअर पा यानी कि बिकॉज ही इज टायर्ड, ही वर्क्स अ लॉट, तो वो उठ ना जाए। पा मीन्स फादर ऑफ कीजिया। तो वो कीजिया को बोलती है जस्ट गो टू स्लीप, अच्छे से सो जाओ, इतना ज़्यादा सोचो मत, एंड डू नॉट स्क्रीम, दैट विल मेक योर फादर टू बी टू वेक अप। क्लियर? ऑल राइट। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, बट जो हमेशा एक नाइटमेयर आता है किसको, कीजिया को, वो सेम नाइटमेयर जो है वो आता है इस बार भी। The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out. Now what was the nightmare that Kezia saw? कि सेम ओल्ड नाइटमेयर में एक बुचरर मीन्स व्हाट, अ पर्सन हु कट्स एनिमल्स, हु कट्स मीट, जो कि मीट वगैरह कट करते हैं। इतने भी इतने भी अच्छे नहीं लगते वो, मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसा लगता है बहुत खतरनाक लगता है उनको देखकर कि जो एनिमल्स कट करते हैं। जैसे आप शॉप्स पे जाते हो, मीट शॉप्स पे, तो वहां पर जो कट करते हैं ना पर्सन, उन्हें हम कहते हैं बुचरर। तो वैसा ही इनको एक बुचरर दिखता है जिसके हाथ में एक नाइफ होता है, एक रोप होती है, चाकू होता है और रस्सी होती है। Who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, और उसके चेहरे पे एक बहुत ही dreadful, frightening सी, डराने वाली एक स्माइल होती है। and he had that knife and rope in his hand and he is coming slowly and slowly towards Kezia. While she could not move and Kezia could not move, Kezia वहीं खड़ी है, वो इतना डर गई है that she is standing still there, she is stationary there, crying out, and obviously she is crying. तो this is the complete nightmare. अब हमारे लिए ये हो सकता है अजीब, but for this young girl this is something really be very frightening, और इससे कोई भी डर जाएगा। and this happened with Kezia that she always used to see this nightmare कि कोई बुचरर है, उसके हाथ में नाइफ है, रोप है, और उसकी तरफ जो है चलते हुए आ रहा है। Grandma, she woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. Now she is like, वो चिल्लाने लगती है grandma because वो बताया ना उसने कि जब भी वो नाइटमेयर देखती है तो जो उनकी ग्रैनी है, जो दादी है, she would come and take her to her bed, right? तो यहाँ पे वो चिल्लाने लगती है grandma नींद में। She woke shivering to see father beside her साइड, बट वो जो है ऑब्वियसली डरी हुई है, शी इज ट्रेम्बलिंग विद फियर, शी इज शिवरिंग, और जैसे ही वो देखती है कि उसके पापा जो है उसके साइड पे सो रहे हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, एंड उनके पापा के हाथ में क्या है, एक कैंडल है, एक मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, और उनके पापा पूछते हैं कीजिया से कि क्या हुआ है, व्हाट्स द मैटर, क्यों चिल्ला रही हो या क्यों शिवर कर रही हो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओह, अ बुचरर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। तो यहाँ पे वो एकदम से डर गई है ना, तो वो सपना देखकर कीजिया जो है ये बताती है अपने फादर को कि एक बुचरर दिखता है उनको सपने में, नाइटमेयर में, और एक नाइफ दिखता है। शी इज लाइक, वो बिट्स एंड पीसेस में बता रही है, एंड आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए, आई वॉन्ट माई ग्रैंड मदर। He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big बेडरूम। क्या करते हैं कीजिया के पापा, वो कैंडल को ब्लो ऑफ कर दे, बुझा देते हैं, फिर बेंट डाउन, नीचे झुकते हैं, कीजिया को अपने हाथ में उठाते हैं, और जो एक लॉन्ग पैसेज है यानी कि कीजिया के रूम से जो बिग बेडरूम तक का जो पैसेज है, जो रास्ता है, वहां तक वो अपने गोद में उठाकर कीजिया को लेके जाते हैं। A newspaper was on the bed, और उस बेड पे, जो उनका बेड था, उस पे क्या रखा था, एक न्यूज़पेपर। He put away the paper, then carefully tucked up the child, और फिर वो पेपर हटाते हैं, tucked up means covered up nicely in bed, और फिर बहुत प्यार से वो कीजिया को बेड पे सुलाते हैं और उसको अच्छे से बेडशीट वगैरह डालते हैं, यानी कि उसको प्यार से सुलाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ही इज लाइक कि वो डरी हुई है, तो शी नीड्स लव एंड कंपैशन, तो वो जो है उसी तरीके से उसको बेड पे सुलाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? ऑल राइट। He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him. तो वो क्या करते हैं, वो भी उसके साथ सो जाते हैं बगल में। ऑब्वियसली वो डरी हुई, तो उसको अकेला छोड़ना इज नॉट समथिंग दैट हर फादर वुड डू, तो वो भी जो है सो जाते हैं कहाँ पर, कीजिया के पास में। हाफ अस्लीप स्टिल, और अभी भी वो हाफ अस्लीप है, यानी कि पूरी तरीके से सोए नहीं है। स्टिल विद द बुचरर स्माइल, यानी कि जो
कीजिया उसकी बात हो रही है, वो हाफ अस्लीप है, अभी पूरी तरीके से सोई नहीं है, उसके दिमाग में वही चल रहा है कि बुचरर की स्माइल दिख रही है, वो नाइफ दिख रहा है, यानी कि वो पूरा का पूरा नाइटमेयर फिर से दिख रहा है. She crept close to him and because of that she is afraid till now. Obviously अभी भी नाइटमेयर देखा है तो she is not come out of that, तो she is very afraid and because of that she जो वो क्या करती है अपने पापा की तरफ पास आने की कोशिश करती है. Snuggled her head under his arm, और अपना जो हेड है स्नगल यानी मूव इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन, और अपना हेड जो है अपना जो सर है वो अपने पापा के आर्म के नीचे रखने की कोशिश करती है जिससे वो एक कंफर्टेबल वार्म पोजीशन में सो पाए. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और जो कि कहाँ पे है, उनका जो हाथ है उनके पापा का वो अपनी शर्ट की, उनकी शर्ट पहनी उस तरफ है तो वो उस हाथ से अपने हेड को एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखकर सो जाती है. Then the dark did not matter. She lay still. Obviously she had someone to take care of her. तो अब ये darkness, ये अंधेरा जो है मैटर नहीं करता कीजिया के लिए. And then she was now sleeping peacefully. Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. अब जब डर लगता है, शिवरिंग हो रही है तो सॉर्ट ऑफ उसको क्या चाहिए, वार्मथ चाहिए, राइट. तो उसके पापा क्या बोलते हैं कि अपनी फीट को मेरी फीट से रब करो तो तुम्हें जो है वार्मथ मिलेगी. सो दिस इज द लव उनके जो पापा दिखाते हैं अपनी बेटी के लिए, सो दैट यू गेट वार्मथ एंड यू आर एबल टू कंफर्टेबली स्लीप. Tired out, he slept before the little girl, but क्योंकि कीजिया के फादर बहुत थक चुके थे तो वो कीजिया के पहले ही सो जाते हैं. A funny feeling came over her, और ये देखकर obviously उसको हंसी आ जाती है किसको, कीजिया को. So as कीजिया father was very tired, he slept before she did. तो क्योंकि कीजिया के पापा बहुत ज़्यादा tired थे, थके हुए थे, तो कीजिया के पहले ही सो जाते हैं. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. And she had this thing in mind कि जो पापा हैं वो इतने बड़े हैं नहीं, जैसे वो जायंट कंसिडर करती थी, ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे पापा के लिए कोई भी नहीं है जो भी उनका ध्यान रख पाए. तो these are things जो वो रियलाइज करती है कि मुझे जैसा लगता है वैसा नहीं है, कि my father is not a giant, he is not a bad person, he is very loving and compassionate. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. Obviously grandmother थोड़ी soft होगी skin, और उनके पापा जो है उनकी skin थोड़ी hard होगी, man skin है, तो वो ऐसा feel करती है कीजिया कि उनकी grandmother की skin जो है वो soft थी as compared to उनके पापा, या फिर उनके पापा की जो skin है वो hard है, but ये hardness जो है वो something acceptable थी to कीजिया. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. And then she realized कि हर दिन जो है वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ थक जाते थे उनके फादर, and it was not possible for him कि वो मैकडोनल्ड की तरह अपने बच्चों के साथ खेल पाएं. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. And whatever she was like, उनके पापा ने इतना कुछ लिखा था और वही papers उन्होंने टीयर कर दिए थे. Because of that, she was like scolded. And then she realized that it was not the case कि उनके पापा उनसे प्यार नहीं करते. Because इतनी बड़ी गलती करी थी, इसीलिए उसके पापा ने उसको इतना चिल्लाया था. Clear? All right. What's the matter? Asked her father. Another dream. अब क्योंकि ये देख रही है ध्यान से, सोई नहीं है कौन, कीजिया, तो उनके father is like, what happened? Did you see one more dream? Are you again frightened of any nightmare? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. तो she is like, oh father, और उसका जो सर है कीजिया का वो उनके पापा के हार्ट पे है, यानी वो इस तरीके से सो रही हैं उस कंफर्टेबल पोजीशन में. She is like, I can hear your heart beating and what a big heart you have got. This means at the end कीजिया becomes aware of the fact that उनके father जो हैं he loves her so much like any other parent would do. एंड बिकॉज वो बहुत टायर्ड होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज ऑफ दैट वो कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो चिल्ला देते हैं कीजिया को, एंड ऑल्सो कीजिया को डांट पड़ जाती है उस वजह से. सो कीजिया काइंड ऑफ रियलाइज दैट इट वॉज हर मिस्टेक दैट शी टर्न द पेजेस दैट वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर फादर, एंड दैट्स वाई शी गॉट दिस ट्रीटमेंट. बट हर फादर इज समवन हु लव्स हर अ लॉट, बहुत प्यार करते हैं कीजिया से, एंड ही इज़ नॉट अ जायंट जैसे कीजिया सोचती थी, एंड ऑल्सो उनके पापा के पास इतना टाइम नहीं होता, इतना ज़्यादा वो थक जाते हैं कि दैट्स वाई इज नॉट एबल टू प्ले विथ हर लाइक मैकडोनल्ड्स की जो फैमिली है, उनके जो फादर हैं वो अपने पांचों बच्चों के साथ खेलते हैं. सो दिस इज हाउ कीजिया बिकम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हर फादर इज समवन हु लव्स हर अ लॉट, एंड वट एवर शी हैड दैट पर्सपेक्टिव कि जो फादर है उनके वो अच्छे नहीं है, वाई गॉड हैज मेड फादर्स. Everything was clear now and Kezia now knows that parents love her a lot. Specifically उसके पापा जो हैं वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. Clear? All right.
So with this we come to an end of line by line explanation of this particular chapter, that is the little girl. I hope आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा. It's a very sweet story जिसमें कीजिया is the little girl जिसके बारे में बात की गई है in complete chapter, and title is always appropriate when it talks about either the main character of the story or the theme of the story, and here it talks about the main character कीजिया, so definitely ये जो title है the little girl, it's appropriate. And what we get to learn from this story is that जो हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है हमारे पेरेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली फादर्स या मदर्स किसी के लिए भी, हमें लगता है कि वो हमें चिल्लाते हैं, हमें इल ट्रीट करते हैं बिकॉज वो हमसे प्यार नहीं करते. बट द थिंग इज जस्ट ऑपोजिट टू इट. पेरेंट्स आपको इसीलिए चिल्लाते हैं बिकॉज वो आपसे प्यार करते हैं एंड दे लव यू दी मोस्ट इन दिस कंप्लीट वर्ल्ड. उनसे ज़्यादा प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता और ना ही करता है. तो ये चीज़ जो है हमें सीखने को मिलती है इस पर्टिकुलर चैप्टर से कि जैसे कीजिया वॉज काइंड ऑफ थिंकिंग कि बिकॉज देखो वो छोटी बच्ची है तो शी इज़ नॉट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि उसकी गलती थी, इसीलिए उसके फादर ने उसको इस तरीके से चिल्लाया और मारा, जो कि बिल्कुल भी ऐसा अप्रोप्रिएट नहीं है. मारना वो समथिंग रॉन्ग, बट ऑब्वियसली कीजिया की जो मिस्टेक थी मे बी उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो उनके फादर का, एंड दैट्स व्हाई ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि उन्होंने वो फ्रस्ट्रेशन मार के निकाला कीजिया पे, विच वॉज टोटली रॉन्ग. क्लियर. बट कीजिया स्लोली एंड स्टेडली अंडरस्टूड कि उनके पापा जो हैं वो उनसे बहुत प्यार करते हैं. द वे वो उसका ध्यान रखते हैं जब उसको एक बुरा ड्रीम आता है, एक बैड ड्रीम आता है, दैट इज समथिंग विच मेक्स हर टू रियलाइज दैट डेफिनेटली हर फादर लव्स हर अ लॉट. एंड दिस इज समथिंग वी ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड दैट आवर पेरेंट्स आर दी वंस जो कि हमारा बहुत केयर करते हैं और हमें इसीलिए चिल्लाते हैं क्योंकि उनको पता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर अस, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड दैट्स व्हाई टू टीच दैट टू अस दे ऑलवेज मेक एफर्ट्स so that we understand what is good for us, what is bad for us. सिमिलरली यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगी, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में हो जो आपको इसीलिए चिल्लाता है ताकि आप कुछ सीखो लाइफ में, या आपकी गलती पे आपको अगर डांट पड़ती है, डू नॉट बी लाइक कि इसने मुझे चिल्लाया ये गलत पर्सन है. नहीं, उस पर्सन ने आपको चिल्लाया मतलब वो आपका अच्छा चाहता है, इसीलिए उसने आपको सिखाया कि भाई ये तुम्हारी गलती थी, डू नॉट रिपीट इट. सो वेन एवर देर इज एनी पर्सन जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, वेदर इट्स अ टीचर, वेदर इट्स योर एल्डर ब्रदर, योर सिस्टर, योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, anybody in this world, whoever scolds you to correct you, that is the person you should always take care of and always respect, because वो आपके अच्छे के लिए आपको एटलीस्ट टाइम दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं. nobody does this in this generation कि कोई टाइम निकालेगा to tell you कि what is right and what is wrong for you, and this is something जो कीजिया के पापा मम्मी करते थे to tell her कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, because वो कीजिया की लाइफ के बारे में सोचते थे कि she should be a proper individual, she should grow as a proper better individual, and that's why they used to take care of her and scold her. Clear? सो आई होप जैसे कीजिया का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है अपने फादर के लिए, वैसे हमें भी समझ आता है कि पहले हमें लगता था कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, नैगिंग है, बहुत गलत बात है, बट धीरे धीरे हम समझ जाते हैं कि वो हमारे अच्छे के लिए था, हमारे भले के लिए था, एंड दिस इज द कंप्लीट मैसेज जो कि यहाँ पर हमको ऑथर देना चाहती है. आई होप दिस मैसेज हैज रीच टू यू, इट इज कन्वेड प्रॉपरली एंड यू गॉट टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्टोरी, द कैरेक्टर्स, व्हाट हैपेंड एंड द इंस्टेंसेस. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वील अगेन सी द कंप्लीट समरी ऑफ दिस चैप्टर सो दैट यू गेट एन ओवरऑल व्यू once again and are able to write the answers in a presentable form which will be asked related to this question. So in the next video we'll meet very soon. Till then take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.